बिच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कह सेवक जन मानै, परतख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचारसी, जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की, निज घर वासा होए। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार ना जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। श्री वाहिगुरु जी। सारंग महला पंजवा। गुर जियो संग तुहारे जानियो, कोट जोध उहाँ की बात ना पुछिए। ता दरगह भी मानियो। गुर जियो संग तुहारे जानियो, कोट जोध उहाँ की बात ना पूछिए। ता दरगह भी मानियो रहाओ। कवन मूल प्राणी का कहिए, कवन रूप दृष्टान्यो। ज्योत प्रकाश भई माटी संग, दुर्लभ देह बखान्यो। तुम ते सेव तुम ते जप तापा, तुम ते तत् पछान्यो। कर मस्तक धर कटी जेवरी, नानक दास दसान्यो। तुम ते सेव तुम ते जप तापा, तुम ते तत् पछान्यो। कर मस्तक धर कटी जेवरी, नानक दास दसान्यो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन हजूरी अंदर हाजरियां भर के जीवन सफल बना रहे गुरु प्यार वाले सतसंगी जनों वडभागी हो। आप जी दे चरणों विच कुछ बेनतियां हैं। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों मिति 24 तरीक नूं पंथ रतन मास्टर तारा सिंह जी का 135वां जन्म दिन NDMC कन्वेंस हाल सामने जंतर मंतर विखे शामी 4 बजे तो मनाया जा रहा है। विशेष समागम होणगे, हाज़री भरन की किरपालता करनी। 25 तरीक नूं बाबा बंदा सिंह जी बहादुर जी का शहीदी दिहाड़ा
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਮਹਿਰੋਲੀ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਤੀ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਤੋਂ 10:30 ਵਜੇ ਰਾਤਰੀ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਮਨਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ NDMC ਕਨਵੈਂਸ ਸੈਂਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਓ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਨਿਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋਣਹਾਰ ਲੋੜਵੰਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 550 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤਰੀ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਊਂਟਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮੀ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਟਾਫ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਣਹਾਰ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਆਓ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇਰਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਲਵਰ ਵਾਲੇ। ਤਿਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡੰਡੋਤ ਬੰਦਨ ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਗੰਮੀ ਬੋਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 1216 ਅੰਗ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਲ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ 17 ਸਾਲ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ
ਤੇ ਉਮਰ ਸੀ 60 ਸਾਲ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ 11 ਸਾਲ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤੇ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਨਸੀਬ ਹੋਈ। ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਸਾਰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਪੱਟਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੈਂ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਭਗਤ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ? ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਔਰ ਰੱਬ ਦੀ ਗੋਦ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਰਸੂਲ ਹੈ, ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਭਗਤ ਹੈ, ਭਗਤ ਹੈ। ਜੋ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਸਾਧਕ ਹੈ, ਸਨਮੁਖ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਐਸਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਮਨਮੁਖ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਤ ਕਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਬਚਪਨ ਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਸਿੰਘਾਸਨ ਨੂੰ ਪਕੜਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੋਹਿਤਾ ਬਾਣੀ ਕਾ ਬੋਹਿਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਾਗਰ ਨੇ, ਬੋਹਿਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੋਲ ਸਮਝਣਾ। ਰਾਹੋ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਜੀਓ ਸੰਗ ਤੁਹਾਰੇ ਜਾਣਿਓ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਜਾਣਿਓ, ਜਾਣ ਲਿਆ। ਸੰਗ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਮੈਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ? ਤੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਨ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਮੀ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਤਨ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਨੇੜਤਾ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਵੇ? ਨੇੜਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸੁਰਤ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਪਦੀਆਂ ਜਪਦੀਆਂ ਜਪਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੇੜਤਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰੀਬੀ। ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਗਰ ਮੈਂ ਬੂੰਦ, ਬੂੰਦ ਮੈਂ ਸਾਗਰ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਹੈ? 5 ਗਿਆਨੇਂਦਰੀਆਂ, 5 ਕਰਮੇਂਦਰੀਆਂ ਤੇ 5 ਹੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹਨ ਤੇ 4 ਅੰਤੇਕਰਨ ਹਨ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਬਰੀਕ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। 5 ਗਿਆਨੇਂਦਰੀਆਂ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਹਨ, ਕੰਨ ਹੈ, ਨਾਸਿਕਾ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤਵਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਪੰਜ ਹੀ ਕਰਮੇਂਦਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੱਥ ਨੇ, ਪੈਰ ਨੇ, ਰਸਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਪੰਜ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਾਣ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣ ਉਹ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਪਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਉਹ ਨੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੇ, ਸੁਣਨ ਤੇ, ਬੋਲਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਚੌਥੇ ਪ੍ਰਾਣ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਗਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਭੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪ੍ਰਾਣ ਉਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਲ ਮੂਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜਵੇਂ ਪ੍ਰਾਣ ਨੇ। ਤੇ ਅੰਤੇਕਰਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਰ ਅੰਤੇਕਰਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ, ਬੁੱਧੀ, ਚੇਤਨਾ ਔਰ ਅਹੰਕਾਰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ 19। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ 19 ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 20 ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਧਿਆਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਣਨਾ ਗਿਆਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਨਾਮ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸਭ ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਦਾ ਸੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜੋ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਨਾਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਔਰ ਸੰਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸੁਣਦਾ ਨਾਮੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੰਸਾਰੀ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਭੇਦ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ। ਸੰਸਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਮੀ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ, ਇਹ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਨਾਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਸੋਚਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਦੁਰਗੰਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਰਗੰਧ ਤੋ ਸੰਗ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿੱਕਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਕੋਟ ਜੋਧ ओवां की बात न पूछी है तां डर गए भीमानी। कोट कहते ने करोड़ा करोड़ा, जोध कहते ने जोधे सूरमे। फिर वो धन करके जोधा है, ज्ञान करके जोधा है, शरीर करके जोधा है, तो भावें किसी भी किस्म की ताकत उहदे कोल है। कहते ने जे उहदे कोल प्रभु की इबादत नहीं है, बंदगी नहीं है, तो प्रभु दे दर ते उहदी कोई गल भी नहीं सुनेगा, कोई गल भी नहीं बचेगा। एक बहुत प्यारी गाथा है जो कि एक सूफी फकीर जिब्रान ओदी कथा है, आप जी के सामने रखा तो गल समझ आ जाए। कहते हैं कि एक धनवान पुरुष, जोधा पुरुष, हर पक्षों जोधा सी, जिथे शरीर विच ताकत, धन की ताकत, रुतबे की ताकत, शौहरत की ताकत, हर तरफों शूरवीर सी, जोधा सी। ते
ਤੇ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉਹ ਰੁਖਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮਰਾਜ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮੋਰਲ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਕਥਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਯੋਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਕਿਤਨੀ ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਕਿਤਨੀ ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤਨੀ ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੇ ਹੋਰ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੂਰਜ ਹੈ। ਕਹਿਣਗੇ ਚੰਗਾ, ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਡ ਨੰਬਰ ਦੱਸ, ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸੂਰਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 50 ਅਰਬ ਸੂਰਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 50 ਅਰਬ ਸੂਰਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਤਨੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੂਰਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਫਿਰ ਕਿਤਨੀ ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਸੂਰਜ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਐਸੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨੇ। ਤੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਯੋਧੇ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਸਤਿਕਾਰ ਉਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਦਬ ਉਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਜੀਮ ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ कि समुंद शाह सुल्तान गृह सेती माल धन। इतना बड़ा सुल्तान होवे कि जितना विशाल समुद्र है इतना विशाल, इतना डूंगा, और जितना पर्वत है उतनी दौलत होवे। पर जे मनुख दे कोल बंदगी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। प्रभु दे दरबार दे विच तेरी गल तक भी नहीं सुनी जाएगी, तेरी गल तक भी नहीं पुछी जाएगी। एक गल मैनू समझ आई जदों गुरु दे कोल मैं बैठा, गुरु जीओ संग तुहारे जानियो, कोट जोध उवां की बात न पूछी है, तां दर गए भी मानी। दरगाह विच कौन कबूल होया? जिसने नाम जपिया, एकमिक हो गए। और जिन्हों ने नाम नहीं जपिया फिर उन्हों की की दशा, उन्हों की की सजा है? कहते ने सजा फिर वही है जम जम मरे, मरे फिर जमे, बहुत सजाए पया दे सिलमे। जन्म लेना फिर मरना फिर जन्म लेना, कीते हुए कर्मां नूं भोगना, दुख भोगने, सुख भोगने, ते फिर रूहे जमीन तो रुखसत कर जाना, फिर वापस आ जाना। क्योंकि जिथे असी बैठे हाँ धरती ते, ये धरती कर्म भूम है, इत्थे बीज भी बीजने ने कर्म दे, और बीजे हुए बीज का जो फल है वह भी साडी झोली विच पैंदा है, भावें चंगे कर्म कीते भावें मंदे कर्म कीते। शेख शादी साहब कहते सी, क्योंकि किसी ने कह दिता मेरी अरदास करो। शेख शादी साहब की कहते हैं, क्योंकि उस वेले लोग गल नूं समझते भी सी ते मन भी लेंदे सी। शेख शादी साहब कहता है मैं तेरी अरदास ये तो कर सकदा कि बीज बीजण दी तैनूं सोझी बख्श देवे परमात्मा, पर यह अरदास नहीं करांगा
कि जो बीज तू बीज चुकिया है तो वह फल तेरी झोली विच ना पवे, वो तो पैगा। हुणे तेरी झोली विच फल पिया, अज पिया कि कल पिया, फिर जैसा तू बीज बीजिया सी वो फल पैगा तेरी झोली विच। उन्हें कोई किसी ने नहीं रोकना है। हाँ, इतनी अरदास कर, जेड़ा बीज मैं बीज चुकिया तो वह फल मेरी जो झोली विच पवे तो मैनू इतनी समर्था देना, इतनी ताकत देना कि मैं उसनों कबूल कर लवां, उसनों बर्दाश्त कर लवां। और धन गुरु अर्जन देव साहब जिसनों कहते हैं, तेरा भाणा मीठा लगे, तेरा हुक्म मैनू मिठा लगे, मिठा लगे। ये ताकत तू गुरु पासों मंग, निरंकार पासों मंग। हुण दूजी पंक्ति विच की कह रहे हैं, कवन मूल प्राणी का कई है, कवन रूप दृष्टायो। कवन मूल प्राणी का कई है। जितनी भी मखलूक है, रूह जमीन ते उदा मूल की है। जे मैं इस तरह अर्ज करा, उसका की माफ, गहरे तल ते समझना साडा मूल की है। माता पिता दा खून, ये साडा मूल है, इत्थों साडी शुरुआत हुई है। जे इसनों मैं होर स्पष्ट भाषा विच कह देवां ते जो मूल है उसनों कई दफ़ा सियाणे लोग कह देंगे ने गंदगी तो ही तो उत्पन्न होया है। पिता दा बीरज, माँ दा लहू। फिर इस मूल तो मनुख का शरीर कितना सुंदर बनया है, कितना सोहना बनया है। बाकमाल सुंदरता मनुख दी। तो इसी का शुकराना कर, तो इसी का धन्यवाद कर। और धन गुरु अर्जन देव साहब कहते हैं बाणी दे विच, जो आप जी की अजीम रचना है, रमैया के गुण चेत परानी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी। तेरा मूल की सी ते तू कित्थे तक पहुँच गया, तेरी मंजिल कित्थे तक दी पहुँच गई, तो कितना खूबसूरत बनया है। जिस प्रभु ने तेनों साजिया, फिर तेनों संवारिया, फिर तेनों सिंगारिया। जिथे अखां की लोड़ है, प्रभु ने उत्थे ही अखां बख्शिया ने। जिथे कन्न चाहिए ने, रब ने उत्थे ही कन्न पाए ने, बख्शे ने। जिथे रसना चाहिए है, रब ने उत्थे ही रसना बख्शी। जिथे हथ चाहिए ने, उत्थे ही रब ने हथ बख्शे ने। तो इसे दा शुकराना कर। एक मनुख बैठा होया है ते रब नूं की कहंदा है, हे खुदा, हे प्रभु। लोग कहंदे ने तो कृपालु है, दयालु है, पर मैं नहीं मनदा, मैं नहीं मनदा। मैनू की दिता है, कुछ भी तो नहीं है। तो उत्थे एक संत पुरुष बैठा है, वो कहंदा है कि रब ने तेनों इतना कुछ बख्शिया है जिहदे बारे तू सोच ही नहीं सकदा, सोच ही नहीं सकदा। कहने लगे की दिता है, तो वह संत पुरुष कहता है, जिहड़ा तू भोजन छकिया, भोजन छकण तो बाद तू तो बेफिक्र हो गया। कीते होए भोजन का किस तरह खून बन रहा है, कौन बना रहा है? तू बना रहा है। कीता होया भोजन मास ते मिज का रूप बन रहा है, तू बना रहा है। कीता होया भोजन शरीर के रोम रोम तक पहुँच रहा है, इन्हू तू पहुँचा रहा है। फिर उस तो बाद शरीर दा दे विच जदों भोजन का तत्त खत्म हो गया, तो फिर मल मूत्र के रूप में अपने आप ही बाहर आ गया। तो पता उदों लगता है जदों कीता होया भोजन खून ना बने, फिर उस मनुख नूं जरा पुछ के देखना। कीता होया भोजन मास ते मिज नहीं बनता पिया, उसनूं पुछ के देखना। फिर कीता होया भोजन पचण तो बाद मल मूत्र के रूप में बाहर नहीं आ रहा, उसनूं पुछ के देख, और तेन दसेगा। फिर समझ आई कि वाकई उसने इतना कुछ बख्शिया है, मेरा फर्ज बनता है मैं उसका शुकराना करा, मैं उसका धन्यवाद करा। इस तो होर अगां मैं अर्ज करा,
ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਸੁੰਦਰ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, इतने सुंदर कन ने, इतने सोहने दंद ने, इतने सोहने हथ ने, और शरीर दे विच खून बनता पिया। ते अज तक भी विज्ञान भावें शिखर ते पहुँच गया, पर ऐसा खून नहीं बना पाया जैसा खून मनुख के शरीर विच बन रहा है। पत्थर की अख विज्ञान ने बना लई, पर ऐसी अख नहीं बनी जैसी अख रब ने सानू दिती हुई है, रब ने दिती हो। प्लास्टिक के हथ पैर बना दिते, पर ऐसे हथ पैर नहीं जो रब ने सानू दिते ने। पत्थर दे दंद बना दिते, पर ऐसे दंद नहीं जो रब ने सानू बख्शे हुए ने, रब। तो इसी दा शुकराना कर, तू इसी दा धन्यवाद कर। जोत प्रगास भई माटी संग, दुर्लभ देहे बखानिया। मिट्टी दे विच जोत मिला के रब ने शरीर बना दिता। खाक नूर करदंग आलम दुनियाए, आसमां जमी दरखत आ पैदाइश खुदाए, बंदे चश्म दीदंग फनाए। मिट्टी विच परमात्मा ने नूर पाया, शक्ति पाई और जगत बना दिता। और इस शरीर नूं की कह दिता? दुर्लभ देह, दुर्लभ। तमाम धार्मिक ग्रंथ ये कहते हैं कि एक मनुख ही ऐसा है जिसके कोल सोच शक्ति है। मनुख ही एक ऐसा है जिसके विच मन विकसित है। उतना विकसित मन पशु विच नहीं है, पंछी विच नहीं है, दरखत विच नहीं है। एक मनुख है जो बोल भी सकता है, जो समझ भी सकता है, जो सोच भी सकता है, जो तुर फिर भी सकता है। धन गुरु अर्जन देव साहब ने तो स्पष्ट लफ्जां विच कह दिता कि जिहड़ा शरीर तैनूं दिता है रब ने, बस इक्को ही काम वास्ते दिता है, मिशन इक्को ही है, और वो है गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया। जे तू रब नूं नहीं गाया फिर तू कुछ भी नहीं कीता, कुछ भी नहीं कीता, कुछ भी नहीं कीता। पर मनुख कित्थे जुड़ गया? दुर्लभ देह नूं पा के कित्थे जुड़ गया? कहते ने उत्थे जुड़ गया जो सब कुछ जोड़ दे नाल बनिया हुआ है, सब कुछ। इसनूं थोड़ा जिहा समझना। जे आलीशान बिल्डिंग है तो इटां दा जोड़ है, मनुख इहदे नाल जुड़ गया, और जिहड़ा जोड़ नाल बनिया है वो कल खिलर जाएगा। बहुत कीमती कार है, जोड़ दे नाल बनी हुई है, पुरजे जुड़े हुए ने। मनुख इहदे नाल जुड़ गया, और एक दिन ऐसा आया कि वो कीमती कार जिहड़ी जुड़ी हुई सी पुरजियां दे नाल, फिर वख-वख हो गई, वख-वख हो गई। मनुख दा शरीर भी जोड़ दे नाल है, वखरे वखरे जोड़ ने, हत्थां दा जोड़ वखरा है, लत्तां दा जोड़ वखरा है, ते मनुख जोड़ नाल जुड़ गया। कहते ने जदों जोड़ खुलते ने मनुख फिर पछतांदा है, जुड़ना चाहिए सी मनुख नूं बेजोड़ नाल, जो परमात्मा है। परमात्मा बेजोड़ है, परमात्मा किसी जोड़ नाल नहीं बनिया, बाकी तमाम शय जोड़ नाल बनी हुई है। तमाम किते भी निगाह मार के देख लवो, जोड़ दे नाल ही बने हुए सब कुछ। सोहना रथ है, जोड़ नाल बने हुए। एक परमात्मा ही ऐसा है जिहड़ा बेजोड़ है, और जिहड़ा मनुख उस बेजोड़ नाल जुड़ गया, कहते ने वो खुद भी बेजोड़ हो गया, खुद। और जिहड़ा जोड़ नाल ही जुड़ के बैठ गया, कहते ने जिवें जिवें वो जोड़ खुलते गए तिवें तिवें मनुख के जीवन में दुख आते गए, दुख आते गए। तो मैं अर्ज कर रहा सी, ये दुर्लभ देह इसनों सार्थक बना ले। गुरु की इबादत कर, गुरु नूं गा। जदों गुरु दा मैं संग कीता, तुम ते सेव तुम ते जप तापा, तुम ते तत् पछानी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक शब्द आया सेव, सेवा, फिर आया है जप, फिर आया है तप,
फिर आया है तत्। ये 2-3 शब्द ने, ये थोड़ा जिहा विस्तार मंगते हैं, इन्हों देखना। गुरु दे कोल जदों मैं बैठ गया, मैनू समझ आ गई सेवा की करनी है। सेवा किस नूं कहंदे ने? धन गुरु अर्जन देव साहिब दे कोल जदों संगत पहुँचती है तो हरमंदर साहिब की जदों सेवा आरंभ होती है, नींह पत्थर रखिया जाता है, उस वेले आप जी ने एक बचन किया सी, जो कि गुरु नानक साहिब के बचनों की प्रौढ़ता है। संगत ने उपदेश किया कि जीवन विच 3 शब्द ने गहरे तल ते वसा लेना, नाम, दान, इशनान। संगत कहती है धन गुरु अर्जन देव साहब नूं, महाराज थोड़ा जिहा विस्तार करो, व्याख्या करो, यदि कथा करो, नाम की है, दान की है, इशनान की है। तो धन गुरु अर्जन देव साहब कहने लगे, नाम तो मुराद है मुखड़ा गुरु वल। नाम इसनों कहते हैं। नामी कौन है? जिसका मुखड़ा गुरु वल है। नाम जपदियां 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 मुखड़ा गुरु वल हो जावे, इसनों कहते हैं नाम। फिर दान की है? साहब जी कहते हैं मुखड़ा जगत वल, मुखड़ा मखलूक वल, मुखड़ा लोड़वंदा वल उन्हां दी सेवा करनी, इसनों कहते हैं दान। फिर वो आर्थिक तल ते पिछड़िया होवे, ओदी सहायता कर। वो विद्यक तल ते पिछड़िया होवे, ओदी सहायता कर। कोई धार्मिक तल ते पिछड़िया होवे तो उसनों जमीन तो उठा। कोई राजनीतिक तल ते डिगिया होवे तो उसनों उठा। कोई सामाजिक तल ते नीवा होवे उसनों उठा, उसनों उठा। मैं फिर अर्ज करा, नाम गुरु वल मुखड़ा, दान पब्लिक वल मुखड़ा, और इशनान अपने वल मुखड़ा, अपने वल। मैं अपने आप नूं भी तो देखा मैं की हाँ। एक आलम कहता है, हम जमाने की खबर रखते हैं पर खुद को खुद की खबर नहीं। मैं की हाँ, मैं की नहीं हाँ, मैनू खुद नूं खुद की खबर नहीं है। जमाने की खबर साडे कोल है पर खुद की खबर नहीं। गुस्ताखी माफ। फलाना मनुख की है पता है मैनू, फलाना मनुख की करदा पिया है मैनू पता है, लेकिन खुद नूं खुद की खबर नहीं मैं की हाँ। तो खुद की खबर किस तरह मिलेगी? कहते ने जेड़ा मनुख गुरु नाल जुड़ गया उसनों खबर मिलती है खुद की। मैं की हाँ और मैं रूहे जमीन ते क्यों आया, खुद की खबर तां मिलती है। तो मैं अर्ज कर रहा सी, गुरु नूं जपदियां जपदियां गुरु तो मैनू समझ आई सेवा करनी है। किसी भी पक्ष तो कोई डिगिया होवे उसनों उठा, उसनों उठा। क्योंकि सेवा दे नाल मनुख जुड़दा है समाज दे नाल, और सिमरन दे नाल मनुख जुड़दा है निरंकार नाल। ये दोवें पक्ष चाहिए ने, सेवा ते सिमरन। सिमरन करदियां करदियां निरंकार दे नाल सांझ पै गई, सेवा करदियां करदियां समाज नाल सांझ पै गई। तुम ते सेव, तुम ते जप। जप कहते ने सिमरन। हुण बहुत बार देखण विच आया है कि मनुख पुछदा है सिमरन की विधि की है, सिमरन की जुगती की है, मैं सिमरन किस तरह करा। कई दफा मनुख पुछ लैंदा है ते वख-वख जवाब होंदे ने सारियां दे। पर एक गल चेते रखना, जदों मनुख नूं भुख लगी होवे ते फिर मनुख की करदा है, रोम रोम दे विचों मंग होंदी है, रोटी चाहिदी है क्योंकि भुख लगी है। पानी की प्यास लगी होवे, रोम रोम पानी की मंग करदा है, रोम 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 रोम।
ਔਰ ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਰੋਮ ਰੋਮ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੁਰਖਾ ਤੂੰ ਜਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਲਾਹੀ ਮਜਲਿਸ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਤ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਘਰ ਹੈ, ਐਸਾ ਦਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੀਆਂ, ਕਥਾ ਸੁਣਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਕਥਾ ਸੁਣ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੇਗੀ ਨਾਮ ਦੀ। ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ, ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇਗੀ ਨਾਮ ਦੀ। ਤੋ ਜਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਪ ਕੀ ਹੈ? ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਤਨ ਨੂੰ ਤਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਇਹ ਤਪ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਇਹ ਤਪ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਪ ਹੈ। ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਇਹ ਤਪ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਪ ਹੈ। ਤੁਮ ਤੇ ਤਤ ਪਛਾਨੀ, ਤਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂਲ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਤਤ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਮਝ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਰਹਿਬਰ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਟਨ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੇਧ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਰੋਸਾਇਆ ਥਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਰੈਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੁਖਿਆ ਹੈ ਸੰਤ ਰੈਣ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਭੋਜਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਸੰਤ ਰੈਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜੇ ਪੁੱਛ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਝੂਠ ਕੀ ਬੋਲੀਏ, ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਭੇਜੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 20 ਰੁਪਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਤ ਰੈਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ, ਸੰਤ ਰੈਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਈਂ ਜੀ ਇਹ 20 ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਇੱਕ ਰੱਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਚੁੱਕ ਲਏ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਤੁਰ ਪਏ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੰਤ ਰੈਣ ਦੇ ਸੇਵਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 20 ਰੁਪਏ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ, ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸੰਤ ਰੈਣ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਬਾਲਕ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਪਾਰ ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਨਾਫਾ ਹੀ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਵੇ, ਖੱਟੇ ਦੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਤੇ ਖੱਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਰੈਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਾਲਕ ਐਸੀ ਖੱਟੀ ਕਰੇਗਾ कि ये 20 रुपये जो वापस लेके गया है कि इसने ऐसी खेड खेडनी है कि जो देशों परदेशों के विच रहिंदी दुनिया तक ये जो खेड खेडन जा रही है, ये खेड यदि उजागर डवेगी। तो जिहड़ी गल मैं अर्ज करन जा रहा इसनों ध्यान देना। उत्थों दे हैड ग्रंथी साहब बहुत ही भगती वाले मैनूं कहण लगे ज्ञानी जी एक गल मैनूं दसो, धन गुरु ग्रंथ साहब की व्याख्या अटल है, अटल है। इसकी व्याख्या नूं कोई नहीं तोड़ सकता, इसकी व्याख्या नूं कोई नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि अटल है। पर धन गुरु नानक साहिब का जो इतिहास है, ऐसे अस्थान ने जिन्हां दी असीं रोज़ अरदास करते हैं, रोज़ कि हे प्रभु कि जिन्हां गुरधामां तो
ਪੰਥ ਨਾਲ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਕਰਕੇ ਵਿਗੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਗੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ तमाम पावन ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵੀ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੇ ਕਿ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਰਚੇ। ਤਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਲਾਹੀ ਬੋਲ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਤੱਤ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੱਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜੁੜ ਗਿਆ? ਸ਼ਾਖਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਮੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਖਾ ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ? तो जिस तरह मूल तो बिना शाखा नहीं है, हर सिमरन छाड़ परमगत चाहे, मूल बिना शाखा कत आए। शाखा किथे नहीं है, ये मूल ही नहीं है, शाखा भी नहीं है। ये शाखा दे नाल प्रीत जोड़नी है तो फिर मूल वल निगाह मार। मूल वल, मूल की है एक ओंकार, मूल की है गुरु है, मूल की है निरंकार है। तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਜੋੜ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਜਪ ਤਪ ਹੈ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਤਰਮੁਖੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਲਵੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਹੈ। और जेकर मनुख अंतर्मुखी नहीं होया तो फिर तृष्णा मनुख नूं भजा रही है। जीवन विच फिर दुख, जीवन विच चिंतावां, जीवन विच कलेश। और जेकर मनुख अंतर्मुखी बनता है उत्थे परम आनंद है, परम शांति है जीवन का। एक आलम की कहता है कि कहाँ का कुर्ब कहाँ की दूरी, अपने आप में गाफिल है। ध्यान देना, कहाँ का कुर्ब, कुर्ब कहते ने करीबी, कि परमात्मा दे नाल करीबी ते परमात्मा दे नाल दूरी। कहाँ का कुर्ब, कहाँ की दूरी, अपने आप में तू गाफिल है। राज अगर पाने का पूछते हो कि परमात्मा नाल किस तरह मिलना है, राज अगर पाने का पूछते हो तो मिट जाना ही पाना है। तो अपने हंकार न मिटा दे, क्योंकि यही पर्दा है, यही दीवार है, बस यही दूरी है। दो ही किस्म के लोग ने। कहते ने एक यात्रा संसार दी, वो है संसार तो हंकार तक दी यात्रा, और एक यात्रा है संसार ते निरंकार तक दी यात्रा। हंकार की कहता है मैं ही होवां, मैं ही सी, मैं ही हाँ। ते मनुख फिर कह देता है कि मैं वड्डा, मेरा मकान कितना वड्डा है, मैं वड्डा हाँ, मेरा परिवार कितना वड्डा है, मैं वड्डा हाँ, मेरे कोल धन कितना है। पर मनुख ये भुल जाता है कि वाकई ही तेरा परिवार तो वड्डा है, मनते हाँ, पर तू रोज छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। तेरी उम्र घटती जा रही है, तू छोटा होता जा रही है। मनते हाँ तेरा मकान वड्डा है, कल होर वड्डा होएगा, पर कल तक तू छोटा हो जाएगा, क्योंकि तेरी उम्र घटती जा रही है, घटती जा रही है। एक विद्वान ने एक गल पूछी, सवाल किया बहुत प्यारा, इन्हों चेते रख लेना। कहते ने संसार दे विच की ऐसा है जो कन्फर्म नहीं है, और की ऐसा है जो कन्फर्म है।
ये दो शब्द ने, ध्यान देना। ये किसी ने कह दिता नौकरी मिले कि ना मिले कन्फर्म नहीं है, रुतबा मिले कि ना मिले कन्फर्म नहीं है, जीवन दे विच तरक्की मिले ना मिले कोई पता नहीं है, पर हाँ एक गल जरूर कन्फर्म है कि रूहे जमी तो रुखसत करांगे, ये कन्फर्म है। ये अटल सच्चाई। तो जेड़ा मनुख ये गल दिल विच धारण कर लैंदा है कि ये गल कन्फर्म है, तो फिर जदों तक वो समा आवे कहंदे ने उस तो पहला पहला तू अपना काम कर ले, पहला पहला। तो इस तरह जिस मनुख ने तत्व नूं पछाण लिया वो फिर बादशाह बन के रूहे जमीत हो जाता है। कर मस्तक धर, कर कहंदे ने हथ नूं, मेरे सिर ते हथ धर के हरी ने की किया, मेरी जेवरी कट दी। जेवरी कहंदे ने रस्सी नूं, जो फाही दा फंदा सी, मैं बंधन विच सी, वो बंधन मेरे कट्टे गए। बंधन की है? आप जी जिमें जिमें सिमरन करते हो आप जी की अवस्था उच्ची उठती है, क्रोध जमीन ते डिगदा है। भगती करदियां करदियां, सेवा करदियां करदियां सुरत उच्ची उठी है, लोभ ने जमीन ते डिग दिता। ये बंधन है। नाम जपदे रहे जपदे रहे जपदे रहे, सुरत उच्ची उठी, हंकार ने मनुख नूं जमीन ते डिग दिता, और हंकार मनुख नूं डिगदा है जमीन ते। ये बंधन ने। हुण ये बंधन जदों मेरे कटे गए तो मेरी सुरत बहुत उच्ची हुई, पर बंधन किस तरह कटे गए? जदों गुरु ने मेरे सिर ते हथ धरिया। एक छोटी जी गाथा गुरु साहिबान के जीवन का इतिहास, जे बाहरों इसनों समझोगे तो पकड़ विच नहीं आएगी गल, इसनों डीप विच समझना है। भाई मरदाना जी बैठे ने, गुरु नानक साहब भी बैठे ने, ते एक मनुख आके कहता है, साईं जी मैं सुनिया है कि आप जी विच इतनी ताकत है, इतनी समर्थ है, किसी दे सिर ते हथ रखते हो उन्होंने खाक बना देंदे हो, सिर ते हथ रखते हो फिर उन्होंने जवाल देंदे हो। गुरु नानक साहब कहने लगे, हाँ जितने रैबर पुरुष आए ने उन्होंने होर की किया, यही तो किया है। मैं फिर अर्ज करा, इसनों बाहरों समझोगे गल समझ नहीं आएगी, इसनों गहरे तलते समझना। भाई मरदाना जी कहते ने, महाराज मैं तो कदे नहीं देखिया कि आप जी ने किसी को हथ रख के मार दिता हो तो किसी को जवाल दिता हो। गुरु नानक साहिब ने सामने बैठे हुए मनुख के सिर ते हथ रखिया और हथ हटा लिया। ते साहिब पूछते ने हुण की होया? कहने लगे, महाराज हथ रखदे सार ही मर गया, मर गया। जो कुछ कूड़ा करकट सी सब सड़ गया, खाक हो गया। जितने रोग सी, जितने विकार सी, सब मिट गए और हथ हटाया जीवित हो गया। कि इलाही जीवन जी जिंदगी बंदगी। मनुख दे जीवन विच मिटदे ने विकार। जदों सिर ते हथ रखिया गुरु ने ते विकार मिट गए, खत्म हो गए। ते अवस्था किस तरह की बन गई? नानक दास दसानी हो। मैं दासां दा भी दास बन गया, मेरे को इतनी निमरता आ गई, दासां दा भी दास। समस्त तबरेज होया सूफी फकीर, वो एक गल कहंदा सी कि आद तो अंत तक दी सच्चाई नूं देखना है ते तू एक कम कर, जितने भी संत पुरुष ने उन्हां दे चरणां दी खाक अक्सीर है वो मत्थे ते लाया कर। जे आद और अंत दी सच्चाई नूं देखना चाहता है तो साधुओं के चरणां दी धूर अपने मत्थे ते लगा।
ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਹਰੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇ, ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਵੇਂ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ, ਹਰੀ ਜਰਦੇ ਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਭਗਤ ਜਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਰੀ ਹਰ ਤਰਫ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਭੀਏ? ਅੱਜ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਜੋੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਆਇਓ ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਹੈ। ਜੋੜਿਆਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਕਿਉਂ ਟੇਕਦੀ ਹੈ? तो जितनी भी संगत सेवा करती पई है जोड़े खाने दे विच, वो मत्था इस करके टेक रहे ने कि किते कोई ऐसा जोड़ा लभ पवे जिहड़ा मनुख निरंकार नाल जुड़िया होया है। तो हुण उस दे जोड़े नूं लभना तो बहुत मुश्किल है। फिर हर एक जोड़े नूं मत्था टेकना है, हर एक जोड़े नूं मत्था टेकना है कि किते कोई वो जोड़ा नसीब हो जाए जिहड़ा मनुख बंदगी करता है। क्योंकि जितने भी लोग संत भगत जन ने वो जदों नाम जपते ने तो जपिया होया नाम मिट्टी ते असर पाता है। उसनों फिर मिट्टी नहीं कहते, उसनों खाक कहते हैं। जपिया होया नाम क्योंकि हिरदे तो जपिया जा रहा है। कोल जेकर सरोवर है उसनों असी पानी नहीं कह सकते, उसनों असी अमृत कहते हैं, क्योंकि वो जल भी वो प्रभाव कबूलता है भगती का, सिमरन का, कथा का, कीर्तन का। और जिहड़ा मनुख नाम जपदा है हवा भी उहदा असर कबूल करदी है, क्योंकि हिरदे नाल जप रहा है, हिरदे नाल। और जिहड़ा मनुख हिरदे नाल नहीं जप रहा, ना मिट्टी उसके प्रभाव नूं कबूलदी है, ना पानी कबूलता है, ना हवा कबूलदी, क्योंकि हिरदा जुड़िया ही नहीं। इत्थे मैं गल कह के कथा की समाप्ति वाल आ रहा। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज भाई नंद लाल नूं कहंदे ने, तेरे नाल बहुत प्रेम है, जी करदा है कुछ देण दा। क्योंकि इतना आप जी भी जानते हो, जिहदे नाल प्रेम होवे आप जी उसनों कह देंदे हो मैं तैनूं कुछ देना चाहता हूँ। और जिहदे नाल दुश्मनी होवे आप जी कहंदे हो इहदे कोल जो कुछ भी है मैं खो लवां। प्रेम बहुता होवे बहुत कुछ देण दा जी करदा है, दुश्मनी बहुती होवे सब कुछ खाण दा जी करदा है। प्रेम बहुता होवे ये भी कह देंदे मैं तेरे उत्ते अपनी जिंद जान भी वार सकदा, मेरा जी करदा है। और दुश्मनी बहुती होवे ये भी कह देंदे मेरा जी करदा है मैं तेरी जान भी खो लवां, जान भी ले लवां। दुश्मनी बहुती है। भाई नंद लाल जी तेरे मन विच कुछ विचार चल रहा है तमंक, क्योंकि शरीर विच साह चलते ने सारी जिंदगी, मन विच विचार चलते ने सारी जिंदगी, सारी जिंदगी। जदों शरीर दे विच साह खत्म होंदे ने उदों मन दे विच विचार खत्म होंदे ने, नहीं तो चलते ही रहंदे ने, चलते रहंदे। तेरे मन विच कुछ चल रहा होवे तू कुछ बोल। भाई नंद लाल जी कहंदे ने महाराज फिर एक काम करो, जिन्ना जिन्ना गलियां तो संगत चल के आती है, जिन्ना जिन्ना गलियां तो ध्यान देना, फिर मैं समाप्ति हो ला रहा। जिन्ना जिन्ना गलियां तो संगत लंघ के आती है मैनू उन्हां उन्हां गलियां दी खाक बना दे, खाक बना दे। क्योंकि जदों संगत उधरों लंघेगी तो उन्हां दे चरनां नूं जुड़ के, चरनां नाल जुड़ के और किते मैं भी निहाल हो जावां और तेरे दर ते किते मेरी भी बंद खलासी हो जावे। मेरी भी अंतर जामी पुरख विधाते शरदा मन की पूरे, नानक दास एह सुख मांगे मौकों कर संतन की धूरे। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहन लगे भाई नंद लाल जी फिर तू एक गल चेते रखना, जिथे तू संगतां दी खाक बनना चाहता है एक दिन ऐसा आवेगा संगत तेरे चरनां दी खाक नूं लचेगी। एक दिन ऐसा आएगा। क्यों? क्योंकि हिरदा जुड़ गया।
ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਜਪ ਤਪ ਸਿਮਰਨ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਇਆ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਥਾ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।